Hello everyone, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching. Today we are going to discuss the worksheet 8 word problems of your unit 7 money. Let us see the first question. The first question goes like this. Nikhil had 9 rupees 50 paise with him. He purchased a chocolate for rupees 6 rupees and 50 paise. How much money was left with him? क्वेश्चन का मतलब ये है कि निखिल के पास 9 रुपया 50 पैसा है और वो एक चॉकलेट खरीदता है जो कि चॉकलेट का प्राइस आपको दिया हुआ है. तो ये चॉकलेट खरीदने के बाद निखिल के पास कितना पैसा बचता है, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम. जब कभी भी लेफ्ट होगा ना, हाउ मच इज़ लेफ्ट, तो वहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है. ये वर्ड को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो सोल्यूशन किस तरह का होगा? वी हैव टू राइट अ प्रॉपर स्टेटमेंट शुड बी देयर because as you are in class 3 your statement should be very much proper with the proper English. So this is how you will write. Amount Nikhil had. सिंपल सेंटेंस है, छोटा सा, जस्ट 3 से 4 वर्ड का सेंटेंसेस होगा, आपका ज़्यादा नहीं. अमाउंट निखिल हैड, दिस मच अमाउंट निखिल हैड. कॉस्ट ऑफ चॉकलेट, cost of chocolate is given to us and we will subtract it and we'll find out money left with him. This much money, that is 3 rupees, is left with him. The money left with Nikhil was the final statement. This is the final statement. ये solve करने के बाद एक final statement आप लिखेंगे to give a better look to your answer. The money left with Nikhil was 3 rupees. Now let's come to question number 2. The question number 2 is Deepa bought rice for 35 rupees 50 paise. फ्लोर फॉर फ्लोर यानी कि आटा होता है, फ्लोर फॉर 52 रुपीज़ 50 पैसे एंड शुगर फॉर 18 रुपीज़. हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल? इन ऑल, वेन एवर देर इज़ अ वर्ड इन ऑल टुगेदर, टोटल, वॉट यू विल डू, यू विल हैव टू ऐड. यहाँ पर हमें ऐड करना है कि दीपा ने राइस ख़रीदा है, आटा ख़रीदा है, शुगर ख़रीदा है, तो दीपा ने कितना स्पेंड किया, कितना खर्च हो गया उसका. हाउ यू विल फाइंड आउट? बाय एडिंग इट. So you will write it, cost of rice given to you, cost of flour given to you, cost of sugar given to you. जो जिसका cost है प्रॉपर उसके सामने लिखेंगे, उल्टा सीधा नहीं कर देंगे. And then the final will be, the answer will be total amount. To total amount, when you will add it, you will get the answer as 106 rupees. So your final statement will be Deepa spent 106 rupees in all. Now let's come to question number 3. There are totally 5 questions. Let's come to question number 3. The question number 3 says Nakul got 50 rupees as pocket money from his father. Okay, Nakul को pocket money मिला है अपने father से. कितना मिला है? 50 rupees. And he bought a story book for 16 rupees 50 पैसे में उसने एक story book खरीदी है. How much money is left in his pocket? Left, देखो ये left वाला वर्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में भी था. तो जहाँ भी क्वेश्चन में लेफ्ट वर्ड होगा तो वहाँ हम क्या करते हैं? देयर वी सब्ट्रैक्ट. सो हाउ यू विल राइट इट? द सोल्यूशन यू विल राइट लाइक दिस. पॉकेट मनी ऑफ नकुल 50 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक का कॉस्ट था 16 रुपीज़ 50 पैसे. तो मनी लेफ्ट विद हिम कितना होगा, कितना उसके पास पैसा बच गया? तो उसके पास बचा है 33 रुपीज़ एंड 50 paise. After subtraction you will get this answer. And the final statement goes like this. The final statement is 33 rupees 50 paise is left in his pocket as pocket money. अच्छा, क्वेश्चन में अगर आपका was है तो was लिखोगे, is है तो is लिखोगे. There is no need to change. जिस टेंस में आपको पूछा है उसी टेंस में आपको आंसर को भी लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is Sonu saw a doll in a shop window. She liked it very much. The doll cost rupees 40, but Sonu has got 36 rupees 50 paise. How much more money does Sonu need to buy the doll? सोनू ने जो एक डॉल देखा शॉप विंडो पे, तो वो डॉल का प्राइस था 40 रुपीज़, लेकिन सोनू के पास पूरे 40 रुपीज़ नहीं है. सोनू के पास हैं 36 रुपीज़ 50 पैसे. तो और कितना पैसा उसे चाहिए ताकि वो डॉल को ख़रीद सके? तो हम क्या करेंगे, जो सोनू के पास जो कॉस्ट है उसमें से सोनू के पास जो पैसा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सोनू को और कितने पैसे चाहिए. कॉस्ट ऑफ डॉल
40 रुपीज़ है. अमाउंट सोनू हैड, सोनू के पास क्या अमाउंट है 36 रुपीज़ एंड 50 पैसे. और सोनू को कितने ज़्यादा पैसे चाहिए, मोर मनी सोनू नीड. हाउ मच मोर मनी शी नीड्स 3 रुपीज़ एंड 54 पैसे मोर. सोनू नीड्स 3 रुपीज़ एंड 50 पैसे मोर टू बाय द doll. Now let's come to the last question of this worksheet. The last question goes like this. Rahul had 590 rupees and 50 paise. Ramu borrowed 250 rupees from him. How much money is left with Rahul? ये क्वेश्चन को समझिए. इसमें देखिए दो लोगों का नाम लिखा हुआ है. अभी तक के क्वेश्चन में there wasn't 2 person, there was a single person who was doing all the things. बट यहाँ पर 2 लोगों का नाम लिखा हुआ है. क्वेश्चन क्या है, पहले हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना है कि ये क्या मीनिंग है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है हमें, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमें किस तरह से सॉल्व करना है, व्हाट ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. राहुल हैड, राहुल के पास इतना पैसा था. रामू बोरोड, बोरो यानी कि रामू ने 250 रुपीज़ राहुल से बोरो किया. अब राहुल के पास इतने पैसे हैं तो रामू को कुछ चाहिए होंगे, तो रामू ने 250 रुपीज़ राहुल से बोरो किया. अब जब रामू से उतना वो ले चुका है तो जब रामू ने 250 रुपीज़ राहुल से ले लिया तो राहुल के पास और कितने पैसे बचे, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम. तो लेफ्ट विद हिम करने के लिए वो तो वही सब्ट्रैक्शन करना है, जहाँ भी लेफ्ट वर्ड है तो वहाँ आँख मूंद करके आपको सब्ट्रैक्शन कर देना है. अमाउंट राहुल हैड, जो अमाउंट राहुल के पास था. अमाउंट राहुल गेव टू रामू, या फिर यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट रामू बोरोड, दोनों भी चलेगा. अमाउंट राहुल गेव टू रामू, इतना अमाउंट उसने दे दिया. एंड अमाउंट लेफ्ट विद राहुल, तो 340 रुपीज़ 50 पैसे उसके पास बचे हैं. दिस मच अमाउंट इज़ लेफ्ट विद राहुल नाउ. I hope you have understood all the questions, how we have solved it, the statements and the answers. Thanks for watching it. Stay connected and be with me.